morning to all of you. So in the last class we were studying the benefits of the international trade, and it is the why the need for the international business. So it is divided into two: the benefits to the nations and the benefits to the firms. Okay, so what are the different benefits which is provided to the nations? Are the first one is earning of the foreign exchange. Okay, through the international business, the firms or the nation may earn the different benefits of the foreign currency when they export the goods, and they can use that foreign currency when they import the goods of like capital goods, technology, petroleum product, etc. Okay, so next one is more efficient use of resources. Okay, ठीक है, more efficient use of resources. Next one is improving growth prospects and the employment potential, and the last one is increases the standard of living of the people. Okay, next, the benefit which is provided to the firms are the prospects for the higher profit. Next one is increased capacity utilization. Third is prospect for the growth, and fourth one is way out from intense competition in the domestic market and improve the business vision. Okay, in the last class we were talked about all these benefits or the importance of the international business. Okay, so in today's class we are going to start the next topic, that is export import document. Okay, so let's start. As well as we know very well, for in the international business we do the exporting the goods to the other country and import the goods from the other country. कि हम क्या करते हैं कि एक्सपोर्ट करते हैं कोई भी दूसरी कंट्रीज़ को where the abundant we have abundant factors of production or the abundant product, so that we can export those product, and in very different kind of product we have lackness of that product. Okay, so in that case we will import the product from the other country. Okay, so in this case when we go through the export and import international business, so there are too much documents needed. Okay, when we exporting the goods or when we importing the goods from the other country, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, क्योंकि ये सारे क्या होता है, ये गवर्नमेंट के थ्रू होता है, तो उसमें सारे लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं कि आप जो भी गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो उसकी पैकेजिंग कैसी हुई है, वो कब रिसिट हुआ है, उसकी प्राइस क्या है, वो कहाँ से प्रोडक्ट जा रहा है कहाँ को जा रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या है डॉक्यूमेंट के थ्रू, उसमें सारा लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो सारा कन्फर्मेशन करना एकदम ज़रूरी है. ओके, तो इन दी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट, in the export import we need various kind of imports, so various kind of documents. Okay, so in this first of all we go through the principal export documents कि ऐसे कौन से export documents हैं, जब हम लोग export करते हैं तो कौन से documents की need होगी in that condition. Then first one is commercial invoice. Okay, so this document contains the detail of goods supplied by the exporter. The common content of this document are names of the buyer, seller, quantity and price of the product, date of selling, marks made on packings, etc. This document is necessary for taking clearance from the excise commissioner, custom authority, export inspection agency. Okay, so first one is commercial invoice. So this document contain the detail of goods supplied by the exporter. ये जो document होता है इसमें उन goods की description दी होती है जो goods supply हुआ है by the exporter. Exporter means जो commodity को export कर रहा है, मतलब दूसरी country में send out कर रहा है, वो कौन से goods को supply कर रहा है. तो इसमें क्या होता है, वो जो भी goods supply हो रहा है उसकी पूरी description होती है कि किस kind of which kind of product are exporting, what is the price of the product and the weightage, everything. Okay, related to those product.
सो द कॉमन कंटेंट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट आर नेम ऑफ द बायर एंड सेलर, ठीक है। उसमें जो कॉमन कंटेंट होता है उस डॉक्यूमेंट में, तो क्या होता है, नेम ऑफ द बायर कि कौन उसको बाई कर रहा है, एंड द सेलर कौन उसको सेल कर रहा है, क्वांटिटी कितनी है, कितनी क्वांटिटी में वो प्रोडक्ट जा रहा है, 100 kg है कि आपका जो भी है 50 kg है या सो ऑन कुंटल है, जितना भी है वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कि क्या प्राइस है प्रोडक्ट की, डेट ऑफ सेलिंग कि किस दिन वो प्रोडक्ट जा रहा है, सेल होगा, मार्क्स मेड ऑन दी पैकिंग्स की पैकिंग जो भी हुई है उस पर कैसे मार्क्स बने कि नहीं, ये आइडेंटिफाइड है कि नहीं, यहाँ से सेंक्शन हो गया है कि नहीं, ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, गिवन होती है। दिस डॉक्यूमेंट इज़ नेसेसरी फॉर टेकिंग क्लियरेंस फ्रॉम दी एक्साइज कमिश्नर। देखिए ये जो सारे डॉक्यूमेंट होते हैं वो इसलिए नेसेसरी है कि हमें हर एक स्टेप पे क्या होता है, क्लियरेंस कराना पड़ता है, क्लियर कराना पड़ता है। एक्साइज कमिश्नर होते हैं, मतलब जो हम गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जब गुड्स होता है तो वहाँ के भी कमिश्नर्स होते हैं जो पूरा चेक करते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है, क्या जा रहा है, इसमें किस काइंड ऑफ प्रोडक्ट है, क्वांटिटी, प्राइस, बायर, सेलर, सारी इन्फॉर्मेशन होती है। कस्टम अथॉरिटी जो ये सारे जहाँ पे भी गुड्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं, एक्सपोर्ट टाइम के ये सारे चेक करते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन वैलिड है या कहाँ पे प्रोडक्ट जा रहा है। एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी जो इंस्पेक्शन की एजेंसी होती है कि जो इंस्पेक्ट करती है गुड्स को, जो कि वो उसकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, लाइसेंस है कि नहीं, कोई भी अगर ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें लाइसेंस की नीड हो तो वो ऐसा प्रोडक्ट है कि नहीं, तो सारी इन्फॉर्मेशन क्या होती है उसकी चेक होती है। नेक्स्ट वन इज़ पैकिंग लिस्ट। This list contains the date of packing, order number, corresponding invoice number, bill of lading number, detail of shipping, detail of selling, details of good in each pack etc. ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें वो सारे प्रोडक्ट कंटेन होते हैं कि इस पैकिंग लिस्ट में होता है कि डेट ऑफ पैकिंग, किस डेट पे वो जो गुड्स हैं जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें वो कौन सी डेट पे पैक हुआ है, ऑर्डर नंबर कितना है। जैसे हम लोग कोई भी गुड्स को क्या करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो उसका ऑर्डर नंबर होता है ना, कि कुछ भी नंबर होता है जिससे आप ट्रैक कर सकते हो कि ये गुड्स कहाँ पे पहुँचा है। इनवॉइस नंबर उसका क्या है, बिल ऑफ लेडिंग नंबर की जो गुड्स हमारा जा रहा है उसका क्या नंबर है, डिटेल ऑफ शिपिंग, शिप की डिटेल पूरी इन्फॉर्मेशन होती है कि इस शिप से जा रहा है, शिप का क्या नंबर है, शिप कहाँ की, सारी इन्फॉर्मेशन होती है। डेट ऑफ सेलिंग कि किस दिन वो गुड जा रहा है, डिटेल्स ऑफ गुड्स इन ईच पैक, ठीक है। और जो भी गुड्स हैं उनकी डिटेल्स पैक पे दी हुई है कि नहीं, पैकिंग जो भी हुई है उस पर सारी इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन और नॉट। तो ये सारा क्या होता है, पैकिंग लिस्ट में होता है। नेक्स्ट वन इज़ बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये क्या होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट होता है, मीन्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। इट इज़ इशूड बाय द शिपिंग कंपनी। ये कौन इशू करता है, शिपिंग कंपनी इसको इशू करती है। व्हेन द एक्सपोर्टर सरेंडर्स मेट रिसीप्ट, जब एक्सपोर्टर क्या करता है, जो शिपिंग ये कौन इशू करता है, शिपिंग कंपनी इशू करती है। व्हेन द एक्सपोर्टर सरेंडर्स मेट्स रिसिप्ट, जब एक्सपोर्टर अपना मेट रिसिप्ट होता है वो उसको शो करता है, इस टाइम शिपिंग कंपनी क्या करती है, इस बिल ऑफ लेडिंग को इशू करती है। वो ये बताती है कि अच्छा अब आप इस गुड्स को क्या कर सकते हो, शिप कर सकते हो, मतलब थ्रू शिप के थ्रू आप उसको भेज सकते हो। सो मेट दिस बिल ऑफ लेडिंग इज़ कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ड्यू टू दी फॉलोइंग रीज़न, ठीक है। ये क्या बिल ऑफ लेडिंग जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ड्यू टू दी फॉलोइंग रीज़न, ओके, इन रीज़न की वजह से। सो फर्स्ट वन इज़ receipt of good. So it is an acknowledgement given by the shipping company whereby the shipping company take responsibility of giving delivery of goods in the importer's country, ठीक है। receipt of goods means it is एक acknowledgement होता है, मतलब जिसको ये जा रहा है उसको acknowledge किया जाता है, बताया जाता है, given by the shipping company इसको देती है। whereby the shipping company take responsibility of giving delivery of goods, ठीक है। जहाँ पे शिपिंग कंपनी क्या करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि जो भी इस गुड्स को, जो ये गुड्स है उसकी वो डिलीवरी करेगी किस पे, इम्पोर्टर्स कंट्री पे, ठीक है। बिल ऑफ लेडिंग के ही थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें जो भी शिपिंग कंपनी है, जो गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा है वो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेती है
कि ये जो गुड्स है वो एक्सपोर्ट हो रहा है, और क्या बोलते हैं कि डिलीवरी ऑफ गुड्स इज़ इम्पोर्टर कंट्री पे ये गुड्स डिलीवर हो रहा है। ओके, ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टेकन बाय दी शिपिंग कंपनी। ठीक है, तो यही वो एक्नॉलेज करती है, एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करती है कौन? शिपिंग कंपनी। नेक्स्ट वन इज़ a document to the title of goods. Okay, why the bill of lading is important? So first one is it is a receipt of good, ये goods का एक receipt होता है। next one is a document of title to goods. the bill of lading gives the ownership right of goods to the person who is holding it. the captain of the ship gives delivery to the importer in the importer's country only when he presents a copy of the bill of lading, because it is a proof he has the title to goods or he is the owner of the goods. Okay, so the bill of lading gives the ownership right of goods. ठीक है, ये जो bill of lading होता है वो क्या करता है? ओनरशिप की राइट देता है। ठीक है, ये राइट प्रोवाइड करता है कि ओनरशिप की राइट की उसका राइट है ऑफ गुड्स टू द पर्सन हु इज़ होल्डिंग इट, कि जो उसको ये शो करता है ओनरशिप राइट ऑफ गुड्स टू द पर्सन हु इज़ होल्डिंग इट, जो उस गुड्स को होल्ड कर रहा है। द कैप्टन ऑफ द शिप गिव्स डिलीवरी टू द इम्पोर्टर, जो शिप का कैप्टन होगा वो क्या करेगा? डिलीवरी कर देगा उस गुड्स को इम्पोर्टर को इन द इम्पोर्टर कंट्री पे डिलीवर कर देगा ओनली व्हेन ही प्रेजेंट है कॉपी ऑफ बिल ऑफ lading। ठीक है, उसी कंडीशन पे वो उसको गुड्स कैप्टन जो है शिप का, वो उसी का कंडीशन पे इम्पोर्ट कंट्री को और जो वहाँ का इम्पोर्टर है उसको उसी कंडीशन पे वो क्या करेगा? वो गुड्स को डिलीवर करेगा जब वो उसको उसके प्रेजेंट में और उसके सामने वो क्या करेगा? बिल ऑफ lading को शो करेगा। ठीक है, उसकी एक कॉपी उसके पास भी होगी जिसमें वो क्या करेगा? मैच करेगा कि ये सारे प्रोडक्ट हैं, इतनी क्वांटिटी है, इसी शिप नंबर से है, इसी बिल का नंबर भी सेम है, इनवॉइस नंबर भी सेम है। इस कंडीशन पे क्या करेगा? वो उसको डिलीवर करेगा, बिकॉज इट इज़ अ प्रूफ दैट ही हैज़ द टाइटल टू गुड्स और ही इज़ द ओनर ऑफ द गुड्स। क्योंकि एक वही प्रूफ है, उसी बिल ऑफ lading क्या है? एक वही प्रूफ है जिसके थ्रू क्या होगा कि ही इज़ द ओनर ऑफ द गुड। अब ऐसे तो कोई नहीं ना, कोई भी अगर कैप्टन है शिप का, वो वहाँ पे शिपिंग इम्पोर्टर कंट्री पे पहुँच गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया पहुँच गया, अब ऑस्ट्रेलिया में कोई भी आ रहा है वो उसको प्रोडक्ट दे देगा? नहीं, जो वो इम्पोर्टर है जो इम्पोर्ट करवा रहा है अपनी कंट्री में, वो क्या करेगा? बिल ऑफ lading शो करेगा जिसमें वही इनवॉइस नंबर होगा, बिल नंबर होगा, सारी इन्फॉर्मेशन होगी प्रोडक्ट के, तभी वो क्या करेगा? उसको गुड्स को उसको इम्पोर्ट करेगा, उसको देगा, बिकॉज इसके थ्रू वो जान जाएगा कि ही इज़ द ओनर ऑफ द गुड। वही क्या है? गुड्स का ओनर है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ए फ्रेटमेंट। ठीक है, सो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ए फ्रेटमेंट मीन्स a bill of lading contains the detail about the payment of the freight charges। ठीक है, जो bill of lading होता है उसमें क्या है? वो क्या कंटेन करता है? डिटेल अबाउट द पेमेंट ऑफ द फ्रेट चार्जेस। जो भी गुड्स क्या हो रहे जा रहे हैं, गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं, उसमें बिल ऑफ lading में क्या है? सारा पेमेंट का अमाउंट दिया रहता है, वेदर फ्रेट विल बी पेड बाय द एक्सपोर्टर और द इम्पोर्टर और द वेदर द फ्रेट विल पेड इन एडवांस और आफ्टर गुड्स रीच द इम्पोर्टर कंट्री एक्सेट्रा। ठीक है, ये जो बिल ऑफ lading है उसमें क्या होता है? ये भी इंफॉर्मेशन गिवन होती है कि वो जो भी गुड फ्रेट हो रहा है, मीन्स जा रहा है, जो भी गुड्स हैं, पेमेंट ऑफ गुड्स का पेमेंट हो चुका है कि नहीं। तो वो उसमें ये होता है कि वेदर फ्रेट विल बी पेड बाय द एक्सपोर्टर, जो भी उसका कॉस्ट है वो एक्सपोर्टर पे करेगा और इम्पोर्टर वो इम्पोर्टर पे करेगा, और वेदर फ्रेट विल बी पेड इन एडवांस, क्या वो जो उसका चार्ज है, जो गुड्स गया है उसका चार्ज पहले ही हो गया है, या जब वो गुड्स उसके पास डिलीवर हो जाएगा कंट्री के पास तब वो उसका पेमेंट करेगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन बिल ऑफ lading में होता है। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ फ्रेट आर क्लियरली स्टेटेड ऑन द बिल ऑफ lading। ठीक है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं डिफरेंट की जो भी कंडीशन होगी वो सारा क्या होगा?
बिल ऑफ लेडिंग पे मेंशन होगा, दैट इज़ वाई इट सर्व एज दी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एफरेटमेंट। ठीक है, इसीलिए क्या है, इसको क्या बोलते हैं, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एफरेटमेंट, क्योंकि इसमें सारी इंफॉर्मेशन, सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन किसी भी गुड्स का गिवन होता है कि वो गुड्स कहाँ जा रहा है, कितना प्राइस है, एज वेल एज कि वो जब शिप कैप्टन जो है शिप का, वो तभी उस गुड्स को डिलीवर करेगा जब उसके पास बिल ऑफ लेडिंग होगा, उसके पास एक वो होगा कि कंफर्मेशन होगा कि वो गुड्स को सही इंपोर्टर को दे रहा है कि नहीं, एज वेल एज जो भी उस गुड्स की प्राइस है, पेमेंट है, वो फ्रेच विल बी पेड बाय द एक्सपोर्टर, वो उसका एक्सपोर्टर पेड करेगा कि इंपोर्टर पेड करेगा, एज वेल एज जो फ्रेट पेड एडवांस में हो गया है या जब गुड डिलीवर हो जाएगा तब पेमेंट होगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन बिल ऑफ लेडिंग में दी रहती है। देखिए एक स्पेसिमेन है बिल ऑफ लेडिंग का, कि ये एक डेमो है कि कैसा होता है बिल ऑफ लेडिंग, कि कोई भी एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में होता है, और जहाँ पे स्टैम्प लगेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन किस डेट को जा रही है, ये सारा क्या होगा उस पर चेक होगा। ठीक है, इसी के थ्रू कोई भी कंट्री को, एक्सपोर्ट और इंपोर्टर कंपनी को एक कंफर्मेशन होता है कि जहाँ पे गुड्स जा रहा है वो प्रॉपर प्लेस पे और प्रॉपर पर्सन को ही मिल रहा है कि नहीं, किसी और इंडिविजुअल को नहीं मिल रहा है। ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन देयर। ओके, नेक्स्ट वन इज़ एयरवे बिल। This document is same as the bill of lading with only one difference, that it is issued by the airway company, not by the shipping company. When goods are transported through the airways, then instead of bill of lading, exporter gets airway bill. ये भी क्या होता है, एकदम सेम होता है बिल ऑफ लेडिंग की तरह, बस डिफरेंस यही होता है कि बिल ऑफ लेडिंग उस इंडिविजुअल को मिलता है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कंट्री को, जब वो गुड क्या है, गुड्स जो है शिप के थ्रू क्या हो रहा है, वो जा रहा है। अगर वो एरोप्लेन की तरफ एयरवेज के थ्रू जाएगा तो उस कंडीशन पे एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को क्या मिलेगा, एयरवे बिल। जस्ट सिंपल है, दोनों का में बस यही डिफरेंस है। एयरवे बिल में भी वही सारी डिस्क्रिप्शंस दी रहती हैं जो सेम आपका बिल ऑफ लेडिंग में है, कि प्राइस कितना है, क्वांटिटी कितना है, सारी इन्फॉर्मेशन, पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है। सो दिस डॉक्यूमेंट इज़ द सेम एज बिल ऑफ लेडिंग, ये सेम होता है बिल ऑफ लेडिंग की तरह, विथ ओनली वन डिफरेंस, एक डिफरेंस होता है, डैट इज़ इट इज़ इशूड बाय द एयरवे कंपनी। ठीक है, ये किसके थ्रू इशू होता है, एयरवे कंपनी, मतलब जो एयरवेज के थ्रू, एयरवे के थ्रू जो गुड्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहे हैं उनके थ्रू जो कंपनी है जो ये काम कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, उनके थ्रू ये क्या होता है, इशूड होता है, नॉट बाय द शिपिंग कंपनी। जो कंपनी जो शिप के थ्रू जा रहा है, मतलब थ्रू दी वाटर सोर्स के थ्रू, उसके थ्रू नहीं, ये एयर के थ्रू अगर कोई गुड्स जा रहा है तो उस कंडीशन पे एयरवे बिल होता है। एंड व्हेन गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द एयरवेज, जब गुड्स क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है एयरवेज के थ्रू, देन इंस्टेड ऑफ बिल ऑफ लेडिंग द एक्सपोर्टर गेट्स एयरवे बिल। ठीक है, अब बिल ऑफ लेडिंग की जगह पे उससे क्या मिलता है, एयरवे बिल। ओके, बस यही दोनों में डिफरेंस, और सारी इंफॉर्मेशन ऑफ द बिल ऑफ लेडिंग इज जस्ट ऑफ एयरवे बिल इज़ द जस्ट सेम एज द बिल ऑफ लेडिंग। वो बिल ऑफ लेडिंग की तरह ही सारी इन्फॉर्मेशन उसमें क्या होती है, गिवन होती, कोई भी ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता है। बस डिफरेंस यही है कि बिल ऑफ लेडिंग किसको मिलेगा, जो शिपिंग कंपनी के थ्रू हो रही है, और एयरवे बिल किसको होगा, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं थ्रू दी एयरवेज के थ्रू। बस यही बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट वन इज सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन। सो दिस सर्टिफिकेट इज इशूड बाय द एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी। ओके, दिस सर्टिफाइज दैट द एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट हैज़ बीन इंस्पेक्टेड एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट। देखिए इसमें बेसिक क्या होता है, इसमें बेसिकली होता यही है कि इंस्पेक्शन मतलब एक इंस्पेक्शन एजेंसी होती है। ठीक है, वो क्या एजेंसी क्या चेक करती है कि जो गुड्स है उसकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि बेकार क्वालिटी का प्रोडक्ट जा रहा है और जितना अमाउंट में बोला गया था, मतलब जितना बोला गया था क्वांटिटी उतनी ही जा रही है कि नहीं। सारी इंस्पेक्शन क्या होता है, ये इंस्पेक्शन अथॉरिटी जो है वो करती है। ठीक है, तो दिस सर्टिफिकेट इज़ इशूड बाय द एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी। जो अथॉरिटी ये चेक करती है, एक्सपोर्ट को इंस्पेक्शन करती है, वही अथॉरिटी और वही एजेंसी क्या करती है, इस सर्टिफिकेट को प्रोवाइड करती है, ये बता के कि ये क्या है, ये जो हम लोग, ये जो शिप के थ्रू ये गुड्स जा रहे हैं,
ये सर्टिफाइड है, मतलब हर एक कंडीशन में इनका हमने पूरा चेक कर लिया है, इनकी क्वालिटी को चेक कर लिया, इसको इंस्पेक्ट कर लिया, अब ये क्या है, जा सकते हैं दूसरी कंट्री में। अब यही सर्टिफिकेट ये लोग लिए रहेंगे, और जहाँ पे भी लोग जो कमिश्नर्स है कस्टम के, ये लोग चेक करेंगे तो ये लोग इसको शो करेंगे कि नहीं, हम लोग पूरा वेरीफाइड हैं, हम लोग कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए ये क्या होता है इस कंडीशन पे, जो एक्सपोर्ट एजेंसी है वो उसको चेक करती है। तो एक्सपोर्ट एजेंसी जब चेक कर लेती है, जब उसके सारे जितने भी रूल्स रेगुलेशन टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफ़िल हो जाते हैं, इन दैट कंडीशन वो एक सर्टिफिकेट उसको इशू कर देती है। दिस सर्टिफाइज दैट, ये सर्टिफाई करता है कि एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट हैज़ बीन इंस्पेक्टेड, जो भी एक्सपोर्ट का कंसाइनमेंट है वो इंस्पेक्ट हो गया है, जो भी गुड्स जा रहे हैं वो इंस्पेक्ट हो गए एज़ पर दी स्पेसिफिकेशन ऑफ दी क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी उसमें टर्म्स एंड कंडीशन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, वो गुड्स को हमने इंस्पेक्ट कर लिया है। जब गुड्स इंस्पेक्ट हो जाते हैं इन दैट कंडीशन, जो एजेंसी है वो क्या कर देती है, उसको एक सर्टिफिकेट इशू कर देती है। ओके, नेक्स्ट वन इज सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन। दिस सर्टिफिकेट इज इशूड बाय द चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बाय एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, ये कौन करता है, ये इशू कौन करता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स। हम लोग ने चैप्टर 9 में पढ़ा था ना, हम लोग ने चैप्टर 9 में पढ़ा था चैम्बर ऑफ कॉमर्स। और ये कौन करता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है जो ये सारा चेक करती है एक्सपोर्ट के थ्रू, और दी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या करती है, ये इसको इस सर्टिफिकेट को इशू करती है, सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन। दिस सर्टिफिकेट सर्टिफाइज, दिस डॉक्यूमेंट सर्टिफाइज दैट गुड्स टू बी एक्सपोर्टेड आर ओरिजिनली फ्रॉम होम कंट्री ओनली ऑन दी एक्सपोर्टर कंट्री ओनली। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन का मतलब यही होता है कि ये यही सर्टिफाइड करता है कि ये जो गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं वो एक्सपोर्टर कंट्री से ही हो रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में कोई एक ट्रेड हो रहा है, इंटरनेशनल बिजनेस हो रहा है, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो क्या कर देगा, इंडिया को एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देगा। ये प्रोवाइड कर देगा, यही सर्टिफिकेट वो वहाँ पे जाके शो करेगा कि ये जो गुड्स आए हैं वो कहाँ से हैं, वो आपने जहाँ से ऑर्डर किया था, आपने इंडिया से ऑर्डर किया था तो इंडिया से ही आए हैं, ये गुड्स अमेरिका से नहीं आए हैं। यही क्या होता है सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन की, जो भी गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं दे आर ओरिजिनली फ्रॉम दी होम कंट्री, मीन्स होम कंट्री से ही आ रहा है, इंडिया से ही आ रहा है, ये पाकिस्तान और चाइना से नहीं आ रहा है। जब ट्रेड इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अगर हो रहा है तो उस कंडीशन पे क्या होगा कि ये जो गुड्स हैं वो क्या होंगे, ये वही शो करेगा कि ये दे आर कमिंग फ्रॉम दी होम कंट्री और ओनली और दी एक्सपोर्टर कंट्री। ठीक है, या तो जो भी जहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है उसी कंट्री से क्या आ रहे हैं, ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, यही क्या होता है सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन, जिसमें ये कंफर्मेशन गिवन होता है। नेक्स्ट वन इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। Okay, this is the document relating to the payment of the goods supplied. According to Negotiable Instrument Act, a bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain amount of money only or to the order of a person or to bearer of the instrument. In case of external trade, the exporter draw a bill of exchange on the importer asking him to make payment on the specified bank। ये हम लोग, आपको याद है कि जब हम लोग पेमेंट का वो पढ़ रहे थे इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड के बीच में डिफरेंस, तो हमने पढ़ा था कि जो भी पेमेंट होता है इंटरनेशनल बिजनेस में वो किसके थ्रू होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू। तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, सिंपली बिल ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट होता है, रिटन इंस्ट्रूमेंट होता है। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ए हूँ, ए पर्सन को क्या करना है, बी पर्सन को पेमेंट करना है। ठीक है, तो ये साइन कौन करेगा, ए साइन उस पर कर देगा, उस पर ये बता देगा कि ये बी पर्सन को क्या है, सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी का अमाउंट होगा, अगर फॉर 10 लाख है तो वो इस पर दे देगा कि इस पर्सन को, बी पर्सन को सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी मतलब 10 लाख पेमेंट करना है। ठीक है, ऑन दिस डेट मीन्स ऑन 20
9 जुलाई 2020 को उसको इतना अमाउंट पे करना है। दिस इज़ कॉल्ड द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जो बेसिकली जब हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, तो ये क्या होता है, इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, कि डायरेक्टली मनी पेमेंट ना करके हम क्या करेंगे, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर देंगे। फिर वो जो इंडिविजुअल है जहाँ पे जिसके नाम से था, वो बी पर्सन क्या करेगा,